Hello and welcome. Welcome to the fourth learning session of chapter number 8 of Science 1, which is metallurgy. So far in this chapter, these are all the topics that we have covered so far. We first looked at the physical properties of metals and non-metals, and in our last few learning sessions, we have been looking at chemical properties of metals and non-metals. How are we studying chemical properties? We learned about chemical properties through reactions of metals and non-metals. For example, we saw how metals react with oxygen, how metals react with water, how do they react with dilute hydrochloric acid, how do they react with other non-metals, so on and so forth. Similarly, we did for non-metals, right? We saw how non-metals react with oxygen, with water, with other non-metals, so on and so forth. So through reactions of metals and non-metals, we learned about chemical properties of metals and non-metals. Okay. Today, we're going to look at a few end of chapter questions based on whatever we have learned so far, and we're going to look at ionic compounds and their properties. Okay. So we have two learning objectives for today's learning session. First one is students will be able to explain general properties of ionic compounds. So there are total 5 general properties of ionic compounds given in your textbook. You should be able to explain each and every one of them by the end of it. And the second learning session, because sorry, not learning session, learning objective. Now, because we are discussing end of chapter questions today, by the end of this learning session, you should be able to recall यानी याद हो जाना चाहिए all the end of chapter questions and answers that we discussed in today's learning session. Okay, so that's your second learning objective for today. Because there's a chemistry chapter, again I'm going to remind you all that it is very important that you all by heart this particular table very well. And only when you by heart this particular table very well, the chemical reactions are going to seem easy to you, or else without by hearting this table, all the chemical reactions will be very difficult for you to understand. Okay. So let us begin with our end of chapter questions. These are given on page number 109 of your textbook. So we are first beginning with question number 6. When a copper coin is dipped in silver nitrate solution, a glitter appears on the coin after some time. Why does this happen? Write the chemical equation. Okay. So you haven't actually done this experiment, nor have we discussed this experiment. Now try to guess. Even if you don't know that what happens when you dip a copper coin in silver nitrate solution, try to take hints. They are seeing something about glitter. Glitter कहाँ से आएगा? सोचो. कौन सा chemical reaction यहाँ पे आ सकता है? That you have to think. And also I'm going to give you all a hint. Okay, the hint is it is related to reactivity of different metals. So with that hint, try to write the answer by yourself. Okay, I'll wait for 5 seconds for you to pause the video here and try to write the answer by yourself using the hint I have given. It is related to reactivity of different metals that we have already seen. I'll wait for 5 seconds. Okay, 5 seconds are up. I hope you pause the video and at least try to write at least 1 or 2 lines by yourself. Only when you practice to write answers by yourself, you will develop the skill of writing them. Okay, फिर board exam में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसको तुमने मेमोराइज नहीं किया, then also you'll be able to attempt that question. That will only come through practice. Okay, so let us discuss the answer now. The first point would be copper is more reactive than silver. How do we know this? In our last learning session, we saw the reactivity series, right? It was a graph which showed which metal is more reactive, which metal is less reactive. तो उस ग्राफ में कॉपर ऊपर था, ऊपर सब हाईली रिएक्टिव मेटल्स थे और सिल्वर नीचे था. सिल्वर इज अ लेस रिएक्टिव मेटल, राइट? सो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से. Therefore, copper displaces silver from its salt solution, silver nitrate. This also we saw, right? Whenever you want to compare the reactivity of two metals, what do you use is displacement reaction. एक metal ले लो और दूसरे metal का salt का solution ले लो. Okay, अगर तुम्हें दो metals का reactivity compare करना है, take that metal, one of those metal, and दूसरे metal का salt का solution ले लो. दोनों को एक दूसरे में mix कर दो और देखो कि वो जो salt solution में metal है वो बाहर निकल के हमारे ओरिजिनल मेटल पे आ रहा है कि नहीं. दैट्स द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेस्ट टू चेक कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है. सो क्योंकि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर क्या करने वाला है, सॉल्ट सोल्यूशन जो है सिल्वर का, कौन सा सोल्यूशन है, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, राइट? सो सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में से सिल्वर को बाहर निकाल देगा कॉपर. ओके, The glittering white deposit of silver metal is formed on the copper coin. I also told you, right? तुम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया तो है नहीं, ना ही हमने ये डिस्कस किया है. तो where could you find the hint in the question itself? Glitter. Glitter किसका आने वाला है? Glitter सिल्वर का आने वाला है. तो वो तुम्हारे लिए हिंट था कि अच्छा सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में से
सिल्वर बाहर निकलने वाला है और इसकी वजह से वहां पे ग्लिटर मिल रहा है. सो दैट्स योर सेकंड पॉइंट. द ग्लिटरिंग व्हाइट डिपॉजिट ऑफ सिल्वर मेटल इज फॉर्म्ड ऑन कॉपर कॉइन. Hence, when a copper coin is dipped in silver nitrate solution, a glitter appears on the coin after some time. तो बस hence लिखा है, कॉमा डाल दिया और क्वेश्चन को वैसे के वैसे वापस लिख दिया. And this is the reaction. It is important that you write correct balanced chemical equation, okay, wherever it's required in this chapter. So you took copper, which is a solid, and तुमने silver nitrate लिया. Silver को Ag बोलते हैं, okay, इसका symbol है element का Ag, and NO3 क्या है, nitrate. And hence I'm telling you कि जो ऑरेंज टेबल है बाय हार्ट होना चाहिए. ओके, व्हाट इज Ag, इट इज सिल्वर. व्हाट इज NO3, इट इज नाइट्रेट. ये पता होना चाहिए. दोनों का रेडिकल क्या है वो पता होना चाहिए. सो यू टेक सॉलिड कॉपर एंड यू टेक सिल्वर नाइट्रेट का एक्वियस सोल्यूशन. तो क्या होने वाला है, ये जो नाइट्रेट है, ये नाइट्रेट निकल के कॉपर में आ जाएगा और सिल्वर वैसे के वैसे रह जाएगा. राइट, से कॉपर नाइट्रेट हो जाएगा और ये जो सिल्वर है, ये जो कॉपर सॉलिड डाला था उसके ऊपर आना शुरू हो जाएगा. तो हमने कॉपर का कॉइन डाला था, राइट, कॉपर के कॉइन के ऊपर सिल्वर आना शुरू हो जाएगा और कॉपर सोल्यूशन में जाना शुरू करेगा. अगेन यहाँ पे Cu, फिर वाले ब्रैकेट में NO3 ट्वाइस लिखा है. ऐसा क्यों लिखा है? अगेन द आंसर इज इन द टेबल. कि कॉपर 2 था, कॉपर 2 के लिए रेडिकल +2 प्लस होगा NO3 नाइट्रेट, उसके लिए -1 होगा. तो -1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है. +2 है तो 2 लिखना पड़ेगा ब्रैकेट डाल के. सो अगेन, if you really want to understand these equations very well, you have to by heart that particular orange table that I showed in the beginning. Okay, so that's your answer to the 6th question. Next question is 7th question. The electronic configuration of metal A 2,8,1 and that of metal B 2,8,2. Which of the two metals is more reactive? Write their reaction with dilute hydrochloric acid. Okay, so again it's simple, right? हमने last learning session में in fact we have seen one of these metals in detail. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, उसके ऊपर से तुम्हें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा मेटल है. मेटल ए कौन सा है, मेटल बी कौन सा. इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दो और देखो कि किसका एटॉमिक नंबर है. तुम्हें मेटल ए पता चल जाएगा, मेटल बी पता चल जाएगा. फिर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के यू हैव टू टेल व्हिच इज मोर रिएक्टिव. ओके, एंड फाइनली यू हैव टू write the equation between metal A and hydrochloric acid and metal B and hydrochloric acid. Again, I'm going to wait for 5 seconds. Try to solve this by yourself. Okay, only when you solve it by yourself, you will gain more confidence. And if you don't get the correct answer, you'll learn where you're making mistakes. It's very, very important that you try these questions by yourself. Okay, so I'll wait for 5 seconds for you to try these questions by yourself. Okay, 5 seconds are up. I hope you have at least 1 or 2 lines written as the answer to this question. Now let us discuss the answers. Okay, so metal A 2 + 8 + 1, 2 + 8 10 हो गया, 10 + 1 11 हो गया. तो 11 एटॉमिक नंबर किसका है, सोडियम. नहीं, ये हमने कल देखा था. मेटल B 2 + 8 + 2 is 12, राइट, और एटॉमिक नंबर 12 क्या है, मैग्नीशियम का. ना मांगो, ना is 11, मांगो is 12, so मांगो is magnesium. सो मेटल ए हमारा सोडियम था, मेटल बी हमारा मैग्नीशियम था. दैट वाज योर फर्स्ट स्टेप. नेक्स्ट, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव ये पूछा, राइट. मेटल ए इज मोर रिएक्टिव बोल रहे हैं. क्यों ऐसा बोल रहे हैं, मेटल ए इज मोर रिएक्टिव क्यों? कॉन्फ़िगरेशन देखो. वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ऑक्टेट, जब भी लास्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड होगा या फिर कंप्लीटली एम्प्टी होगा, द एलिमेंट विल बी मोर स्टेबल. ओके, सो इसको या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे या तो 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा. 1 इलेक्ट्रॉन देना इजी होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा. सिमिलरली यहाँ पे या तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे या 6 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे. क्या इजी होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स देने. तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना, इसको 2 इलेक्ट्रॉन देना. व्हाट वुड बी इजियर, 1 इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा इजी होगा. तो सबसे ज्यादा इजीली रिएक्शन कौन करने वाला है, सोडियम करने वाला है. बिकॉज गिविंग 1 इलेक्ट्रॉन इज वेरी इजी, राइट, सो इट विल वेरी इजीली रिएक्ट विद अदर्स. whereas giving 2 electrons will be a little more difficult and hence it will not react so easily. So this sodium configuration is more reactive than magnesium configuration. So that they have explained in point number 3. Metal A is more reactive than metal B as it has to lose only 1 electron from the outermost shell, while metal B has to lose 2 electrons to achieve stable electronic configuration. Okay, जब भी last orbit completely filled होता है, completely empty होता है, तब उसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं. ओके, फिर बाद में क्या पूछा था, राइट द रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो व्हेन वी आर स्टडीइंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स वी सॉ
how metals react with dilute hydrochloric acid. So if you understood that particular slide very well and if you have memorized it, वो अच्छे से समझा तो ये भी तुम्हें खुद से लिखने आना चाहिए था. Okay, so both sodium and magnesium react with dilute hydrochloric acid to form corresponding salt and release hydrogen gas. ये तुम्हें याद होना चाहिए कि अच्छा मेटल्स हमेशा dilute hydrochloric acid के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हमें एक सॉल्ट मिलता है और एक और थोड़ा हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है. दैट यू नीड टू रिमेंबर. ओके, सो दिस इज हाउ द रिएक्शन विल लुक लाइक. सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaCl, Na प्लस Cl आ जाएगा और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा H2 के फॉर्म में. सिमिलरली यहाँ पे मैग्नीशियम Mg एंड Cl, MgCl साथ में आके MgCl2 होगा. अब यहाँ पे MgCl2 क्यों आया, यहाँ पे NaCl आया बट यहाँ पे MgCl2 आया, ऐसा क्यों हुआ? अगेन द आंसर इज इन दैट ऑरेंज टेबल. सोडियम का रेडिकल है 1 प्लस, क्लोरीन का रेडिकल है 1 माइनस. तो 1 प्लस एंड 1 माइनस जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, NaCl आ जाएगा. वेयरएज मैग्नीशियम का जो रेडिकल है दैट इज 2 प्लस. ओके, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो Cl2 हो जाएगा. एंड क्लोरीन का क्या है रेडिकल 1 माइनस, तो 1 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई होकर सिर्फ मैग्नीशियम बनेगा, Mg2 नहीं बनेगा. ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू बाय हैड दैट ऑरेंज टेबल. एंड सिमिलरली यहाँ पे MgCl MgCl2 हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला है तो निकल के वो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा. यहाँ पे जो साइड में 2 लिखा है, how will you write that? For that you need to learn how to balance chemical equations that we have studied in detail in our chapter number 3, chemical reactions and equations. So you can go there and revise the part where we studied how to balance chemical equations. Okay, so whenever you're giving examples, all your reactions need to be balanced. इसको बाय हार्ट करने की कोशिश मत करो, तुम्हें बस चेक करना है कि एलिमेंट्स लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इक्वल है कि. फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड में सोडियम के कितने एटम्स है 2, राइट साइड में भी 2 होने चाहिए. तो यहाँ पे देखो सोडियम के 2 एटम है, लेफ्ट में हाइड्रोजन के कितने एटम है 2 हाइड्रोजन के एटम्स है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन के एटम्स है. नीचे लिखो या साइड में लिखो, एटम तो 2 है तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी दोनों साइड इक्वल है. क्लोरीन देखो, क्लोरीन लेफ्ट साइड में 2 है एंड राइट साइड में भी 2 है. सो सोडियम हाइड्रोजन क्लोरीन लेफ्ट साइड में भी, लेफ्ट साइड में जितने एटम्स है राइट साइड में भी उतने ही एटम्स है. इट मींस दे आर बैलेंस्ड, द केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड. ओके, सो वैसे बैलेंस करने आना चाहिए. सो दैट वाज योर आंसर टू द second question. Now let us move on to the topic for today's learning session, the new topic that we are going to learn, which is ionic compounds. So we had already learnt about ionic compounds when we were discussing reactions of metals with non-metals, right? ये same reaction हमने देखा था, sodium plus chlorine क्या होता है. I'm going to quickly revise the basics. Okay, sodium के पास 11 electrons है because its atomic number is 11. So 11 electrons है, first electron में 2, sorry first orbit में 2 electrons, यहाँ पे first electron, यहाँ पे सेकेंड इलेक्ट्रॉन. सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2. सो सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट ऑर्बिट में 1 बच जाएगा. क्लोरीन में फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8 एंड थर्ड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, सो अंदर के ऑर्बिट्स को तुम इग्नोर कर सकते हो. यहाँ पे बाहर के ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बाहर के ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स. तो क्या होगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन गायब करना है ताकि उसके लास्ट ऑर्बिट में 8 हो जाए और इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि उसका लास्ट ऑर्बिट 8 हो जाए. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से निकल के यहाँ पे जाने वाला है. ये देखो, ये जो रेड इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पे आके क्लोरीन में आ गया और यहाँ का सोडियम का जो थर्ड ऑर्बिट है वो गायब हो चुका है. ओके, that's what happens. नाउ यहाँ पे क्लोरीन को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया बिकॉज क्लोरीन हैज वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव. So chlorine gets a negative charge because of that extra electron. Okay, इसको क्या बोलते हैं हम, ions. What is the meaning of word ion? देखो ये ionic जो word है ये कौन से word से बना, ion, I-O-N. ion का मतलब क्या है, whenever atoms have positive or negative charge they are called as ions. Okay, so जो chlorine atom है वो chlorine atom में से chlorine ion बन गया. Okay, क्योंकि negative charge आ गया. जिसको भी negative charge आता है उसको हम एनायन बोलते हैं. इफ यू रिमेंबर मैंने ग्रेड 9 में सिखाया था, राइट? एनायन को कैसे याद रखना है, एनायन साउंड्स लाइक ऑनियंस, एनायन साउंड्स लाइक ऑनियंस. सो व्हेनेवर यू कट ऑनियंस यू विल स्टार्ट क्राइंग, यू विल फील वेरी नेगेटिव. सो एनायन मींस नेगेटिव. सो क्लोरीन इज योर नेगेटिव आयन और एनायन. सिमिलरली सोडियम हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, तो थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज उसमें से चला गया. सो सोडियम एटम का भी सोडियम आयन बन गया. ये अगर एनायन है तो ये कैटायन है. ओके, हाउ डू यू रिमेंबर दिस? कैटायन इज मेड फ्रॉम द वर्ड कैट. व्हेनेवर द कैट इज अराउंड यू यू फील वेरी पॉजिटिव
एंड हेंस पॉजिटिव आयन मतलब कैटायन. ओके, सो सोडियम इज योर कैटायन. सो यहाँ पे कैटायन और यहाँ पे एनायन, whenever कैटायन एनायन come together they will stick to each other. क्यों? क्योंकि positive charge and negative charge they always attract each other. Okay, so because of that force of electrostatic attraction वो लोग एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे and hence सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म. इसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं. ओके, अभी यहाँ पे +1 चार्ज है, यहाँ पे -1 चार्ज है, तो +1 - 1 ओवरऑल ये न्यूट्रल है. ओके, सो अगर तुमने एक सोडियम क्लोराइड लिया, सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल लिया, तो ओवरऑल ये न्यूट्रल होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है. ओके, सो ओवरऑल ये न्यूट्रल होता है. So that was a quick revision of ionic compounds. Okay, so ionic compounds are crystalline in nature. Crystalline मतलब क्या है? They have regular arrangement. Okay, यहाँ पे अगर तुम देखो, यहाँ पे सब कुछ अरेंज लग रहा है, राइट? अच्छे से अरेंज्ड लग रहे सारे एटम्स. वेरएस अगर तुम यहाँ पे देखो, नीचे वाले में अरेंजमेंट अच्छा नहीं, बीच बीच में कहीं पे कम गैप है, कहीं पे ज्यादा गैप है, कुछ भी अरेंजमेंट नहीं दिख रहा है, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं दिख रहा है. सो जब भी रेगुलर अरेंजमेंट्स होती है एटम्स की या फिर आयंस की, तब उसको हम क्रिस्टलाइन बोलते हैं. सो आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर. द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन सॉलिड आयोनिक कंपाउंड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर क्रिस्टलाइन नेचर. क्योंकि उनका जो अरेंजमेंट होता है उनके आयंस का, वो रेगुलर होता है, काफी अरेंज्ड लगता है. दो तीन आयंस के बीच में जो गैप है हमेशा सेम रहेगा, इसके वजह से उसको क्रिस्टलाइन बोलते हैं. ओके, दैट्स द मीनिंग ऑफ द सेकंड पॉइंट. द सर्फेसेस ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हैव अ डेफिनेट शेप एंड आर स्मूथ एंड शाइनी. ओके, अगर तुमने क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का पार्टिकल ले लिया, तो उसका जो सरफेस होगा, सरफेस का एक डेफिनेट शेप होगा. ओके, और जनरली वो सरफेस काफी स्मूथ और शाइनी होगा. Last point, the arrangement of ions is different in different ionic compounds and therefore the shapes of their crystals are also different. तो ये जो ions है वो कैसे अरेंज होंगे, वो हर आयोनिक कंपाउंड के लिए अलग होता है. ओके, ऐसा नहीं कि आयोनिक कंपाउंड है तो सबका सेम अरेंजमेंट होगा, अलग अलग आयोनिक कंपाउंड्स के अलग अलग अरेंजमेंट्स होंगे. and because of those different arrangements, the shapes of their crystals will also be different. So sodium chloride NaCl और magnesium chloride MgCl twice, इन दोनों का जो क्रिस्टल का शेप होगा ये अलग अलग होने वाला है. ओके, the main factor that determines the general arrangement of ions in a crystal is the attractive force between oppositely charged ions and the repulsive force between similarly charged ions. Okay, so अगर मैंने इतना ज्यादा सोडियम क्लोराइड ले लिया अपने हाथ में, सोडियम क्लोराइड क्या है तुम लोग को पता है, राइट? सोडियम क्लोराइड इज स्टेबल सॉल्ट. एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट सोडियम क्लोराइड इज, सोडियम हमें पता है हाईली रिएक्टिव होता है, राइट? अगर तुम उसको एयर में भी लेके आ जाओगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो जलना शुरू हो जाएगा, राइट? Whereas क्लोरीन इज अ पॉइजनस गैस, बट सोडियम और क्लोराइड को साथ में लेके आ जाओ तो नमक बन जाता है, और नमक को हम लोग रोज खाते हैं. So by itself, individually, sodium and chlorine, both of them are dangerous for us. But when they combine and become sodium chloride, we can actually eat it. Okay, and we use it a lot in our food, right? So अगर मैंने इतना ज्यादा सोडियम क्लोराइड अपने हाथ में ले लिया, तो उसमें Na+ मॉलिक्यूल्स नहीं, Na+ आयंस भी होंगे और Cl- आयंस भी होंगे. So अभी जो Na+ होंगे वो एक दूसरे को दूर फेंक रहे हैं, बट Na+ और Cl- होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है. सो दो फोर्सेस है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे. ओके, एक है कि अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, Na+ और Cl- एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बट एट द सेम टाइम सिर्फ एक ही Na+ और एक ही Cl- थोड़ी होगा, बहुत सारे Na+ होंगे, बहुत सारे Cl- होंगे. सो देयर विल बी सम रिपल्सिव फोर्स बिटवीन सिमिलरली चार्ज्ड आयंस आल्सो. तो दो Na+ के जो आयंस होंगे वो लोग एक दूसरे को रिपेल करेंगे, उससे एक दूसरे से दूर जाना होगा उनको, बिकॉज opposite charges attract each other and same charges repel each other, एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं. Because of this, general crystalline structure has negative ions arranged around a positive ion and positive ions arranged around a negative ion, right? क्योंकि सेम चार्ज वाला कोई भी आयन बाजू बाजू में नहीं होगा, क्योंकि वो रिपेल करेगा, राइट? सो एक नेगेटिव आयन के आजू बाजू सब पॉजिटिव आयंस होंगे, और एक पॉजिटिव आयन के बाजू में आजू बाजू में सब नेगेटिव आयंस होंगे. ओके, इट इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस. देखो यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन है उसके आजू बाजू सब नेगेटिव आयन है, यहाँ पे जो नेगेटिव आयन है उसके आजू बाजू सब पॉजिटिव आयन है. तो जनरली ऐसा होता है ताकि
पॉजिटिव पॉजिटिव बाजू में ना आ जाए, नेगेटिव नेगेटिव बाजू में ना आ जाए. ओके, there are two important factors responsible for a certain crystal structure, and they are as follows. First, size of the positively and negatively charged ions. कैसा उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, ये कौन से दो चीजों पे डिपेंड करता है. पहली चीज है कि पॉजिटिव आयन जो है उसका साइज क्या है और नेगेटिव आयन जो है उसका साइज क्या है. उसके ऊपर से डिसाइड होगा कि क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसे दिखने वाला है. एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन आयंस, कितना चार्ज है. सोडियम क्लोराइड में +1 -1 था, बट ये हमेशा सेम नहीं होने वाला है. दूसरे आयोनिक कंपाउंड्स में वो +2 -2 हो सकता है, +3 -3 हो सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके, तो चार्ज कितना उससे भी फर्क पड़ने वाला है, उससे भी क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है वो कम ज्यादा आगे पीछे होने वाला है. ओके, The electrostatic attraction in the neighboring ions with opposite charges is very strong. यहाँ पे जो नेगेटिव प्लस और पॉजिटिव में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है काफी स्ट्रांग होने वाला है. जो कोई भी ऑपोजिट चार्जेस होगा, अट्रैक्शन जो होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बोलते हैं, और वो काफी स्ट्रांग होता है आयनिक कंपाउंड्स में. एंड दैट इज व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर हाई. क्यों हाई होगा? मेल्टिंग पॉइंट के लिए क्या क्या लगता है, वो जो बॉन्ड्स है वो टूटने चाहिए, राइट. अगर बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग है तो तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट जनरली हाई होंगे. ऑल्सो द आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल. हार्ड का मतलब तो समझ में आता है, कड़क. ओके, हार्ड मतलब कड़क. ब्रिटल का मतलब क्या है? ब्रिटल यानी उसके छोटे छोटे टुकड़े बहुत इजीली हो जाएंगे. से फॉर एग्जांपल तुम लोग ने कॉपर का रॉड ले लिया, कॉपर के रॉड को ऐसे मोड़ दिया, तो क्या होने वाला है? टूटने वाला है क्या? वो टूटने नहीं वाला है, वो मुड़ जाएगा, बराबर. वैसे अगर तुमने एक चौक का पीस ले लिया और चौक को ऐसे तुमने प्रेशर लगाया, तो चौक पे प्रेशर लगा दिया, टूट जाएगा. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? कॉपर मुड़ जाएगा बट चॉक टूट जाएगा. जो कुछ भी टूट जाता है इजीली उसको हम ब्रिटल बोलते हैं. ओके, छोटे छोटे टुकड़े काफी इजीली हो जाते हैं. And if you find all of this very interesting, you should take science in 11th and 12th. There is a topic called as solid state physics. Okay, so solid state physics में तुम लोग ये सब काफी डिटेल में पढ़ोगे, क्या अलग अलग शेप्स होते हैं क्रिस्टल्स के, कैसे उसमें से तुम इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकते हो, so on and so forth. So it's a very interesting topic to learn about if you take science. Okay, solid state physics ये टॉपिक का नाम है. इवन इफ यू टेक इंजीनियरिंग, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में यू विल स्टडी about solid state physics in detail in first year of your physics paper. If you're interested in this particular topic, take science in 11th and 12th. Okay, so now there's a try this given on page number 98. I'm not going to read the entire procedure. Okay, what I want you to do is please pause the video here and read the entire procedure. I'll wait for 5 seconds for you to pause the video and read everything. Okay, okay, 5 seconds are up. I hope you paused the video and read everything. Okay, I'm not going to read everything, I'm not going to explain everything again. What you do need to remember is कौन से सैंपल ले रहे हैं हम लोग. सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम क्लोराइड, एंड एक्चुअली वाटर भी ले रहे हैं. ओके, सो ये अलग अलग सैंपल्स हम ले रहे हैं. ऑल्सो स्टार्टिंग में उन्होंने बर्न करने बोला, हम लोग बर्न वन नहीं करने वाले. ओके, हम लोग सीधा सेकेंड स्टेप पे जाएंगे. So this is what they are trying to tell us to do. Okay, what they are trying to tell us to do is पानी ले लो और पानी में सॉल्ट सोल्यूशन डालो. तो हमने जो NaCl बोला था, नॉर्मल नमक है हमारे घर का, वो नमक तुम डाल सकते हो. ओके, पानी में सॉल्ट सोल्यूशन बना दो. नेक्स्ट, ग्राफाइट के रॉड डाल दो, इसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं. ओके, ग्राफाइट के रॉड डाल दो. यहाँ पे एक बैटरी डाला है हमने, और यहाँ पे एक बल्ब डाला है, और यहाँ पे एक की है. की यानी एक स्विच, बटन होगा, बटन दबाओगे तो चालू हो जाएगा, बटन बंद कर दोगे तो बंद हो जाएगा. ओके, सो अभी ये जो बल्ब लगाया है, बल्ब के बाजू में बैटरी तो है, तो बल्ब जलेगा हाँ या ना? टेल मी. यू हैव अ बल्ब ओवर हियर एंड बल्ब के बाजू में तुमने बैटरी लगाया, सो दिस बल्ब शुड ग्लो, राइट? इट वोंट ग्लो क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है. बेसिक फिजिक्स कि जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने वाला है. कहाँ पे कंप्लीट नहीं? यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जाती है, राइट? सो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, बल्ब में जाएगी. की अगर समझो बंद रखा है तो की में से पास होके यहाँ तक जाएगा, बट यहाँ से आगे नहीं जा सकता. सो इस रॉड से इस रॉड तक जा नहीं सकते इलेक्ट्रिसिटी, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करने वाला है जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होता है. बट जैसे ही हम सॉल्ट सोल्यूशन डाल लेंगे कुछ ना कुछ होने वाला है. ओके, सो लेट मी टेक आउट माय पेन. ओके, तो अब इसमें हम क्या डालने वाले हैं? इसमें हम डालने वाले हैं नमक, घर का नमक, विच इज सोडियम क्लोराइड, NaCl. NaCl. Okay, it's difficult to write on a computer. Okay, so please forgive my handwriting.
सो ये तुम्हारा नमक का एक टुकड़ा है। ओके, अभी इस नमक के टुकड़े को जब तुम पानी में डालोगे तो डिसोसिएट होने वाला है। डिसोसिएशन वी हैड लर्न इन डिटेल इन आवर प्रीवियस ग्रेड। डिसोसिएट होने वाला है। ओके, डिसोसिएट होना यानी अलग अलग हो जाना। सो ये NaCl का तुम्हें Na प्लस मिल जाएगा। ओ, एक मिनट, यस, NaCl का Na प्लस मिल जाएगा एंड Cl माइनस मिल जाएगा। ओके, सो इसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन। व्हेनेवर यू पुट सम सॉल्ट इन वाटर इट डिसोसिएट्स। ओके, सो अभी यहाँ पे देखो चार्जेस को। ओके, सो यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे जो साइन है या चार्ज है ये सब नेगेटिव है। ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसको नेगेटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट किया है। सिमिलरली राइट साइड देखो, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है। सो लेफ्ट साइड वाले इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव एंड राइट साइड वाले इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज है। ओके, सो अभी पानी में डिसोसिएशन की वजह से Na प्लस हो गया है और Cl माइनस हो गया है और इलेक्ट्रोड्स पे भी चार्ज आ गया है। सो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? ये जो Na प्लस है ये इस रॉड पे चला जाएगा और ये जो Cl माइनस है ये इस वाले रॉड पे चला जाएगा, बराबर, क्योंकि Na प्लस का प्लस जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव की तरफ चले जाता है और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव रॉड की तरफ चले जाएगा। तो पहले जो कोई भी तुम सॉल्ट डालोगे, सॉल्ट पानी में डालने के बाद डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट होने का मतलब क्या है? उसके आयंस अलग अलग हो जाएंगे। ओके, सो NaCl में Na प्लस और Cl माइनस होता है वो अलग अलग हो जाएंगे पानी में डालने की वजह से, बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड एज डिसोसिएशन। डिसोसिएशन होने के बाद Na प्लस नेगेटिव रॉड पे चला जाएगा, Cl माइनस पॉजिटिव रॉड पे चला जाएगा। और ये रॉड्स पे नेगेटिव और पॉजिटिव साइन कहां से आया? क्योंकि बैटरी लगाया था, राइट? सो इस बैटरी में से नेगेटिव और पॉजिटिव साइन उन रॉड्स पे आ जाता है। So, what is electricity? Electricity is nothing but flow of charges, right? So यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है। सो बिकॉज ऑफ दिस जैसे ही तुम इसमें सॉल्ट डाल दोगे ये लाइट करना शुरू हो जाएगा। द लाइट बल्ब विल स्टार्ट, इट विल स्टार्ट गिविंग आउट लाइट। ओके, सो दैट्स द एक्सपेरिमेंट। मैंने तुम लोग को ऑलरेडी पूरा एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या होने वाला है। ओके, नाउ व्हेन यू एक्चुअली लुक at the video that I'm going to show, it is going to be much easier. Okay, you know everything that is going to happen. But फर्क क्या है कि यहाँ पे बैटरी की जगह पे हम लोग सीधा स्विच में डाल देंगे। ऑल्सो डू नॉट ट्राई दिस एट योर होम। ओके, यहाँ पे ट्राई दिस लिखा है बट डोंट ट्राई दिस एट योर होम बिकॉज दिस कैन बी लिटिल रिस्की। अगर तुम बैटरी यूज कर रहे हो तो चलेगा, बट बिना बैटरी के अगर तुम कर रहे हो तो डू नॉट ट्राई दिस एट योर होम खुद से। ओनली व्हेन द टीचर इज अराउंड यू कैन ट्राई इट। ओके, so we are not going to use a battery. We're going to use directly the socket, घर का socket electricity का use करने वाला। That's the only difference. Let us start looking at the video. Switch off the sound. Okay, so एक बल्ब ले लिया और बल्ब को हमने स्विच में, हमारा जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है उसमें लगा दिया और उसका वायर निकाल के रखा है। ओके, व्हेनेवर यू टच द वायर द सर्किट कंप्लीट हो जाता है। जैसे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो बल्ब ग्लो करना शुरू कर देता है। नाउ व्हाट दे गोइंग टू डू इज, उसको पिन कर रहे हैं वो लोग वाटर बॉल में। एक बाउल ले लिया, बाउल में पानी भर दिया, उसमें एक बार एक वायर को पिन कर लिया। ओके, सेकेंडली अभी दूसरे वायर को वो लेके आके चेक कर रहा है कि अगर उसको टच करेंगे तो बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं। सो यू कैन सी दैट यस, व्हेन यू टच देम वो बल्ब ग्लो करना शुरू हो जाता है। ओके, सो यू कैन सी यहाँ पे टच हो गए दो वायर्स तो बल्ब ग्लो करना शुरू कर रहा है। So, जैसे सर्किट कंप्लीट हो जाता है बल्ब ग्लो करना शुरू हो जाता है। नाउ व्हाट इज डूइंग इज एडिंग सॉल्ट। भी दोनों को अलग अलग रखा है बट सॉल्ट डाल रहा है उसमें। सो एज सून एज यू पुट सॉल्ट विच इज सोडियम क्लोराइड इन द वाटर it will start dissociating, and because of the dissociation current is going to be passed within the water, right? और जैसे ही पानी में सोडियम आयंस और क्लोरीन आयंस पास होना शुरू हो जाएंगे, ट्रैवल करना शुरू कर देंगे, तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और वो बल्ब ग्लो करना शुरू हो जाएगा। ओके, so that was the experiment, and also they have asked us to do that using different सैंपल्स। ओके, हमने सोडियम क्लोराइड के साथ देखा है वीडियो में क्या होता है, राइट?
जब घर का नमक यूज करते हो तो तुम पोटेशियम आयोडाइड के साथ भी ट्राई कर सकते हो, बेरियम क्लोराइड के साथ भी ट्राई कर सकते हो, सिर्फ पानी के साथ भी ट्राई कर सकते हो। सिर्फ पानी के साथ नहीं होने वाला है। ही जस्ट चेक, राइट, जब उसने एक बार डाला था लेफ्ट साइड में, दूसरा बार राइट साइड में, तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था। तो सिर्फ पानी से काम नहीं चलने वाला है। पानी में जब तुम सॉल्ट डालोगे, आयोनिक कंपाउंड डालोगे, तब वो डिसोसिएशन की वजह से वो जो आयंस ट्रैवल करते हैं उसकी वजह से लाइट बल्ब ग्लो करना शुरू कर देता है। ओके, सो दैट वाज द experiment over here. Okay, we're going to move ahead. Okay, now we are coming to the final part of our learning session, okay, which is general properties of ionic compounds. So the first two properties are given on this slide. Let me close this. Okay, so first property, the attractive force between the positively and negatively charged ions is strong. Therefore, the ionic compounds exist in solid state and are hard. क्योंकि वो जो नेगेटिव आयन होता है और जो पॉजिटिव आयन होता है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। इसलिए क्या होता है, ये हमेशा सॉलिड स्टेट में होते हैं। जनरली ये लिक्विड स्टेट में वगैरह नहीं मिलेंगे आयनिक कंपाउंड्स। ये लोग सॉलिड स्टेट में रहेंगे एंड वो काफी हार्ड होंगे, कड़क होंगे। Second property, the ionic compounds are brittle and can be broken into pieces by applying pressure. वो लोग हार्ड है, कड़क है, और जैसे ही तुम प्रेशर लगा दोगे छोटे छोटे टुकड़े होना शुरू हो जाएंगे। उसको हम बोलते हैं ब्रिटल। ओके, ब्रिटल यानी बहुत इजीली उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। सो दोज वर द फर्स्ट टू जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट, the intermolecular force of attraction is high in ionic compounds and large energy is required to overcome it, right? Again, it's the same point again and again, that वो जो पॉजिटिवली चार्ज आयन विच इज कैटायन एंड नेगेटिवली चार्ज आयन विच इज एनायन, दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स है वो इतना हाई होता है कि अगर तुम्हें उस बॉन्ड को तोड़ना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, ओके, ताकि वो बॉन्ड टूट जाएगा। इसलिए क्या होता है, जनरली आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स काफी हाई होते हैं। सो इफ यू लुक एट हियर, दे हैव गिवन सम एग्जांपल्स, राइट? All these are ionic compounds: ZnCl2, MgCl2, NaCl, NaBr, KCl, MgO, so on and so forth. All of these are ionic compounds. So इनके melting points और boiling points देखो, it's here it is close to 300, 700, 800, 700, 700, 2000, 800. Similarly, boiling point तो हमेशा 1000 के ऊपर ही होता है, ओके। एंड यहाँ पे वाटर देखो, वाटर आयनिक नहीं है, राइट? वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो आयनिक बॉन्ड से नहीं बनता, कोवैलेंट बॉन्ड से बनता है। सो जो कोवैलेंट बॉन्ड से बना है उसका मेल्टिंग पॉइंट देखो 0 और बॉइलिंग पॉइंट 100। बाकी सब 300, 400, 500, 700, 1000 के ऊपर जा रहा है। ये ऐसा क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं आयनिक कंपाउंड्स के, ओके। सो दैट्स आवर प्रॉपर्टी नंबर 3 ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। फोर्थ प्रॉपर्टी, आयनिक कंपाउंड्स आर वाटर सॉल्युबल। सॉल्युबल का मतलब मिक्स होता है, ओके। सो आयनिक कंपाउंड्स वाटर में इजीली मिक्स हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल्स ओरिएंट in a particular manner around the ions separated by dissociation process. क्या हो जाता है कि जैसे ही तुम किसी भी आयनिक कंपाउंड को पानी में डालते हो, वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लोग इस तरीके से ओरिएंट होते हैं, ओरिएंट यानी किस तरीके से वो लोग किस डायरेक्शन में वो घूम रहे हैं, ओके। वाटर मॉलिक्यूल ऐसा दिखता है, वी शेप में। यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन होगा और लेफ्ट और राइट में दो हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, तो ऐसा वी शेप में दिखता है वाटर का मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से इस डायरेक्शन में आ जाएंगे ताकि वो जो आयंस बनते हैं डिसोसिएशन के बाद, जो आयंस बनते हैं उसको पूरा सराउंड कर लेता है, ओके। As a result of this, a new force of attraction is established between the ion and the surrounding water molecules, replacing the original intermolecular attraction, and aqueous solution of ionic compounds are formed. तो पानी में डालने से पहले कौन सा फोर्स था? The force between, say for example NaCl के केस में Na प्लस और Cl माइनस के बीच का फोर्स था। पर जैसे ही पानी में डाल दोगे एक नया फोर्स आ जाता है। सो वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है और सोडियम का जो पॉजिटिव आयन है उसके बीच में अट्रैक्शन आ जाएगा। सिमिलरली क्लोरीन विच इज नेगेटिव एंड वाटर का जो पॉजिटिव पार्ट है उनके बीच में अट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा। सो जो ओरिजिनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसके पे एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है बिटवीन Na प्लस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स एंड Cl माइनस इन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके। सो वाटर मॉलिक्यूल इज वेरी स्पेशल इन दैट केस। वाटर मॉलिक्यूल का एक साइड पॉजिटिव होता है, दूसरा साइड नेगेटिव होता है। सो इसके लिए काफी वर्सेटाइल होता है, इसलिए वो इजीली डिसोसिएट कर सकता है आयनिक कंपाउंड्स को। आयनिक कंपाउंड्स आर हाउएवर इनसॉल्युबल। सॉल्युबल का ऑपोजिट, वाटर सॉल्युबल यानी वाटर में मिक्स हो जाएगा, सॉल्युबल का ऑपोजिट इनसॉल्युबल।
So it is insoluble in solvents like kerosene and petrol. Kerosene और पेट्रोल में वो मिक्स नहीं होते हैं ionic compounds. ऐसा क्यों? This is because unlike water, a new attractive force cannot be established in those solvents. क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल एक स्पेशल मॉलिक्यूल है जिसका एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड होता है. वो लोग अच्छे से एक नया अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट कर सकते हैं बिटवीन देम एंड द डिसोसिएटेड आयंस, बट केरोसिन और पेट्रोल के मॉलिक्यूल ऐसा नहीं कर पाते हैं. सो दैट्स योर फोर्थ जनरल प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स. This here is an animation. Okay, समझो ये तुम्हारा NaCl है. Green is Cl minus and brown is Na plus. और यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स है रेड और ग्रे में दोज आर वाटर मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ पे मैंने बोला राइट कि एक साइड पॉजिटिव होता है दूसरा साइड नेगेटिव होता है. तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल में जो वी शेप के अंदर होता है वो पॉजिटिव होता है और वी शेप के जो बाहर ऑपोजिट साइड होता है वो नेगेटिव होता है. तो यहाँ पे देखो अंदर की साइड पॉजिटिव बाहर की साइड नेगेटिव. उसकी वजह से वो लोग जो भी डिसोसिएट हो रहे होते हैं आयंस को उसको सराउंड करके निकालते जाते हैं. That's how it takes place in water. Okay, so that was an animation of how water molecules surround Na plus ions and Cl minus ions. Okay. Next and the last general property of ionic compounds is that ionic compounds cannot conduct electricity when in solid state. In this state, the ions cannot leave their places. एक बार सॉलिड स्टेट में होगा आयनिक कंपाउंड तो लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस को मूव करना पड़ेगा. राइट? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? फ्लो ऑफ चार्ज. तो जब तक चार्ज फ्लो नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी. सो क्योंकि आयनिक कंपाउंड में सारे के सारे जो आयंस है वो इतने अच्छे से फिक्स हो गए वो लोग मूव नहीं कर पाते. अगर वो मूव नहीं कर रहे चार्ज मूव नहीं होगा. चार्ज मूव नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी. ओके. So ionic compounds cannot conduct electricity in solid state. However, in fused or molten state, they can conduct electricity. As in this state, the ions are mobile. Mobile यानी move कर सकते हैं. Okay, mobile ये word कहाँ से आता है? Move कर सकते हैं. तो हम लोग जब मोबाइल फोन बोलते हैं मोबाइल फोन उसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम उसको move कर सकते हैं. Okay, so molten state का मतलब क्या है? अगर तुम उसको मेल्ट कर दोगे, अगर आयनिक कंपाउंड को तुम मेल्ट कर दोगे तो मोल्टन स्टेट में आ जाएगा. जब तुम उसको मेल्ट कर देते हो तब उसके जो आयंस है वो मूव कर सकते हैं, मोबाइल हो जाते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देता है. The aqueous solutions of ionic compounds conduct electricity as they contain dissociated ions. This also we have seen in detail now, right? कि aqueous solution मतलब क्या? पानी में जब मिक्स करते हैं उसको तो तभी भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्योंकि उसमें डिसोसिएटेड आयंस होते हैं. We saw in that experiment. पानी ले लो, पानी में 2 इलेक्ट्रोड डाल दो, उसके आजू बाजू एक बल्ब लगा दो और बैटरी लगा दो. जैसे तुम आयनिक कंपाउंड डालोगे डिसोसिएशन होगा. डिसोसिएशन की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अलग अलग हो जाएंगे और वो मूव करना शुरू कर देंगे इलेक्ट्रोड्स के पास. एंड बिकॉज चार्ज इज मूविंग, चार्ज मूव हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है. ओके, सो पानी में भी जब तुम आयनिक कंपाउंड्स को डालोगे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देगा. On passing current through the solution, ions move in oppositely charged electrodes. Again, this we have seen in our experiment. Try this वाला. Na plus negative electrode की तरफ जाएगा and Cl minus positive electrode की तरफ जाएगा. Okay. And the last point, due to the electrical conductivity in fused and dissolved state, the ionic compounds are called as electrolytes. Okay, एक special नाम है जिसको ionic compounds को हम बोलते हैं उसको electrolytes. Okay, क्यों electrolytes बोलते हैं? क्योंकि फ्यूज्ड एंड डिसॉल्व्ड स्टेट. फ्यूज्ड यानी मेल्टेड स्टेट में और डिसॉल्व्ड यानी पानी में जब मिक्स हुआ, इन दो स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, इसलिए उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं. एक स्पेशल नाम दे दिया उसको. So we are done with all the new things that we have studied. We wanted to cover all the new topics that we wanted to cover today. Let's end this learning session with a few more end of chapter questions. Okay, 2 more end of chapter questions we have. I know this video has become long enough already, but last 2 end of chapter questions. Okay, so the first one is give reason given on page number 109. C, give reason. Sodium is always kept in kerosene. This is related to I think our first or second learning session. सोडियम को हम केरोसिन में क्यों रखते हैं? अगेन अ हिंट इज सोडियम काफी इजीली रिएक्ट करता है. दैट्स योर हिंट. यूजिंग दिस हिंट कैन यू राइट अ प्रॉपर गिव रीजन point wise. Okay, so I'll wait for 5 seconds for you to pause the video here and write the answer by yourself. At least try to write 2 to 3 points if you can. Okay, and if you can write okay, that is it. 2-3 point भी अगर तुम लिख दोगे अच्छे से, that would be more than enough. So I'll wait for 5 seconds for you to pause the video and try to write the answer in point form for this question. Okay,
Okay, 5 seconds are up. I hope you pause the video and try to write the answer by yourself. Now let us look at the answer. काफी simple answer था. Sodium reacts with moisture present in air even at room temperature. Okay, so ये हमने कहाँ पे देखा था? Reaction of metals with oxygen. इस टॉपिक के अंदर देखा था जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ रहे थे. सो सोडियम, तब हमने क्या जाना था कि सोडियम is going to react with moisture present in the air even at room temperature. रूम टेम्परेचर में भी जो मॉइस्चर होगा हमारे एयर में उसके साथ रिएक्ट करना शुरू कर देगा एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. तो मैंने एक्चुअली गलत बोला, नॉट विथ, we did not study this in topic metals reacting with oxygen. We studied in the topic metals reacting with water. Okay, उस टॉपिक में हमने पढ़ा था because it is reacting with water, right, and not oxygen. सो रूम टेम्परेचर यानी तुम्हें कोई एनर्जी भी प्रोवाइड नहीं करनी है, कंबशन नहीं करना पड़ता है, अपने आप वो रिएक्ट करना शुरू कर देता है मॉइस्चर के साथ जो एयर में होगा. एंड दिस इज द इक्वेशन. ओके, सोडियम प्लस वाटर gives you NaOH, which is sodium hydroxide, and hydrogen gas is released. तो ये रिएक्शन अकर करता है. The reaction is exothermic. Again, exothermic is made up of two words, exo and thermic. Exo यानी बाहर, thermic यानी heat. So heat बहुत